Good morning, students. Let us start. Yesterday we discussed about graphs. We discussed about velocity time graph, that if we take time on x-axis and velocity on y-axis, if the line is parallel to the x-axis, which indicates that velocity is constant throughout the motion, and that is uniform motion. From this we can calculate the distance also. From the velocity time graph we can calculate the distance, or you can say displacement. When the motion is on straight line in a fixed direction, then velocity and speed are same and distance and displacement are equal. So we can calculate distance. Suppose at point A, object is point A, and after some time it comes at point B. So we have to calculate the distance between these 2 points. So how we will calculate the distance between these 2 points? We will draw a perpendicular from B, that is BC, and from point A, that is AD. The shaded area, this area will represent the distance. So this is the area of rectangle. So we can calculate the distance, that is equal to length into breadth, which is equal to BC multiplied by DC, or you can say AB multiplied by BC will gives us distance. Now on this graph is between again velocity and time. Velocity on y-axis and on x-axis this is time taken, and we have to calculate the distance between these 2 points. Suppose one point A is here and B is here. We have to calculate the distance between these 2 points. This slope, this is uniform acceleration, which is starting from rest, so initial velocity is 0. So distance will be this shaded portion, area under the slope AB. ये कोई भी शेप हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, कुछ भी शेप होगी. तो इस पोर्शन का एरिया हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन पर है तो ये क्या हो गई? हमारी डिस्प्लेसमेंट. सो इन स्ट्रेट लाइन motion we call distance or displacement same. So we sometimes we speak displacement or sometimes we speak distance, that means the same. So this is the shaded area of shaded portion will gives us the distance. You can see in this graph that is the distance is between 2 points, that is equal to area of this shaded region where the velocity is uniform. So distance will be CD base into height, that is equal to CD into AC. In the velocity time graph, if we have to calculate the distance when the speed or when velocity changes uniformly, means it is starting from O and the slope is like a straight line, then we have to suppose calculate the distance at point A from O to A. So if then we have to draw a perpendicular AC, which tells us the time taken is this OC. So the distance will be this shaded region, that is equal to area of triangle OAC, which is equal to base into height.
So distance will be, area of triangle is half into base into height, that is equal to half into OC into AC. So these we will be using in our numericals also. Important concept of this chapter is the equations of motion and derivation of equations of motion by graphical method. There are three equations of motion. First is V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, and third is 2AS is equal to V square minus U square. These equations of motion can be named like this way: equation of velocity time relation. फर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरह से ना पूछ के ऐसे भी पूछ सकते हैं, derive the equation of velocity time relation, derive the equation between position and time, and next third equation of position velocity relation. These symbols, V indicates final velocity, U stands for initial velocity, A stands for acceleration, and T stands for time. And S stands for distance, or you can say displacement. So these are three equations of motions which will going to derive by graphical method, and these equations will be directly used in the numerical problems. Now let us start with first equation of motion, that is equation of velocity time relation. On the graph we had x-axis and y-axis. On x-axis will take time and on y-axis will take velocity. So how we will start the derivation? We will say consider an object. Suppose कोई object है वो किसी velocity से move कर रहा है. अब किसी velocity से move कर रहा है तो हम ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? A पॉइंट से. यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है? ज़ीरो. तो ज़ीरो टाइम में जब कोई स्टार्ट करता है तो टाइम क्या हो गया? ज़ीरो. तो ज़ीरो टाइम पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पर उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए और टाइम टी के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है? पॉइंट बी पर. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इस एक्सिस पर क्या हो जाती है? v. सो वी विल सी स्लोप ऑफ लाइन AB will tell us acceleration. Slope of velocity time graph, that is AB, is represented as acceleration. और इस स्लोप की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस स्लोप की वैल्यू है दैट राइज अपॉन रन, कि ये कितना ऊपर जा रहा है और कितना टाइम लगा रहा है. मीन्स इट AB is slope, value of AB can be written as BD upon AD. और AD हमारा क्या है? अगर हम B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो टाइम एक्सिस पर ये कितना टाइम इंडिकेट करता है? T. कितना टाइम इंडिकेट करता है? T. Now at point B velocity is v. How we can check? If we draw a line parallel to OC and perpendicular on this axis at point E, so OE will represent final velocity v, or you can say BC is equal to v and CD is equal to
U, because OA is equal to CD and OE is equal to BC. So BC can be written as BD plus CD, BD plus CD, or BD can be written as BC minus CD. ये BD निकालने के लिए इस कंप्लीट BC में से अगर हम CD को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, BD. So then acceleration AB means slope of line AB can be written as BC minus CD upon AD. AD क्या है मेरे पास, टाइम, और ये किसके बराबर है, OC. AD is equal to OC. क्यों, because they are opposite sides of rectangle, or you can say parallelogram. Now put the value, इनकी वैल्यू पुट करो. BC, BC मेरा क्या है, जस्ट चेक इन द ग्राफ. BC is equal to OE means V, और CD क्या है हमारा, CD that is equal to OA which is equal to U. So और OC is equal to AD is equal to T. So A is equal to V minus U upon T. आप पढ़ के आए हो, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. तो t को हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U, और वी कैन राइट V इज इक्वल टू U प्लस AT. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. इस फॉर्मूला को हम बाकी इक्वेशंस में भी यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करेंगे. और एक्सेलरेशन को हमने किस तरह से डिराइव किया है, ग्राफिकली. सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन. उसी तरह से सेम ग्राफ में, सेम ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम, और कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मींस a पॉइंट से चल रहा है, टाइम t पार होने के बाद वो b पॉइंट पर पहुंचता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v. अब हमने निकालना है, सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमें उसके लिए चाहिए, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर. हमने इसको डिराइव करना है. s निकालना है मीन्स डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर डायरेक्शन सेम है तो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, एरिया अंडर द स्लोप AB. AB के नीचे जितना शेडेड पोर्शन आता है, ये जितना एरिया है, वो जैसी भी फिगर है उस सारी फिगर का एरिया हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट. अब ध्यान से देखो इस फिगर को, इसको हम ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं, OABC. ये हमारा ट्रेपीजियम भी हो सकता है, या हम इसको ले सकते हैं कि एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल. एरिया ऑफ triangle area of figure OABC क्या होगा,
which is equal to area of rectangle AOCD, AOCD plus area of triangle ADB, ADB. Area of rectangle and area of triangle will give us this area of complete shaded portion, that is equal to displacement. अब हम फिगर में इनके एरिया देखेंगे. डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? S. सो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ मेरी क्या है? OC मल्टीप्लाई बाय OA, OC मल्टीप्लाई बाय OA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमारा बेस है AD और ये हमारी क्या है? हाइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई बाय BD. AD बेस और BD हाइट. अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम. S इज इक्वल टू OC इंटू OA प्लस हाफ AD इंटू BD को मैं क्या लिख सकती हूँ? जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव की थी तो BD को हमने क्या लिखा था? BD को हमने लिखा था BC माइनस CD, BC माइनस CD. सो S इज इक्वल टू OC हमारा क्या है? OC हमारा है टाइम T. OA हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी U. T मल्टीप्लाई बाय U प्लस हाफ AD इज अगेन टाइम T मल्टीप्लाई BC माइनस CD. हमने फर्स्ट में लिखा था BC मेरा क्या है? BC इज़ V माइनस U. BC इज इक्वल टू BD प्लस CD जो हमने फर्स्ट इक्वेशन की थी. पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करनी पड़ेगी, फिर हमें सेकंड इक्वेशन करनी पड़ेगी, या आप इस तरह से साइड पे लिख सकते हो. BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, BD प्लस CD और BD इज इक्वल टू BC माइनस CD विच इज़ इक्वल टू V इज इक्वल टू U प्लस AT और U इधर जाके माइनस हो गया तो V माइनस U इज इक्वल टू AT. तो हमारा क्या हो गया? V माइनस U आ गया. BC माइनस CD हमारा क्या है? V माइनस U. V माइनस U को मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से उसकी वैल्यू ले लेती हूँ AT. इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे V माइनस U की जगह. तो मेरा क्या हो जाएगा? इक्वेशन अब हमारी क्या हो जाएगी? S इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई होगा UT प्लस हाफ T. Instead of V minus U, we will write AT. So when you will simplify this, you will get S is equal to UT plus half AT square. So this is the second equation of motion. We can use using the formula of area of trapezium also. It is your choice. Now next is third equation of motion, that is equation of position velocity relation. Again the same graph we will using, and in which time is taken on x-axis, velocity is taken on y-axis, and an object starts from A with initial velocity U and stops at B with final velocity V. Now we have to calculate the displacement. तो आप पहले जैसे सेकेंड इक्वेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो, या आप इसको क्या ले सकते हो? ट्रेपीजियम वाले फॉर्मूले से.
तो मैं अब आपको ट्रेपीजियम वाले फॉर्मूले से डिराइव करना बता रही हूँ. नाउ एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम? ओ ए बी सी. कौन सा? ओ ए बी सी. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट और परपेंडिकुलर. अब पैरेलल साइड हमारी इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ओ ए पैरेलल बी सी. तो मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई हाइट. हाइट हमारी क्या है? ओ सी. ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाफ इंटू बी सी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज इक्वल टू ओ सी. Substitute the values. हाफ बी सी हमारा क्या है? वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी. ओ ए क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी u, v प्लस u इंटू टी. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम t की वैल्यू निकालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस v माइनस यू, और a से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? t की वैल्यू आ जाएगी. कौन सी वैल्यू होगी? t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा? s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन a. ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? t की वैल्यू. कहाँ से आई? फर्स्ट इक्वेशन से. तो अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो सारा वही का वही रह जाएगा. v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए दैट इज इक्वल टू 2a. अब अलजेब्रे में आप फॉर्मूला करते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और ये 2a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. और इसको इस साइड लिख देंगे तो हमारा हो गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आपको अगर एग्ज़ाम में थर्ड इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी आती है तो फर्स्ट पहले करेंगे फिर थर्ड करेंगे. सेकेंड इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी आती है फर्स्ट करोगे और सेकेंड करोगे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों इक्वेशन एज अ फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे.